Good morning, my dear students. Wish you all a very happy new year. This is Dr. Sakshi Mittal. Welcomes you all in today's class. Today I will teach you non-finite verbs infinitive. Verb. The verb has been derived from a Latin word verbum. Verbum means to say something about someone. A verb denotes an action which tells something about the subject. There are two main verb forms in English, the finite verb and the non finite verbs. Finite verbs. Finite verbs are those verbs which are limited by number, person, and tense. Or you can say, finite verbs are those verbs which change their form according to subject, number, and tense. क्या मतलब है कहने का? वो वर्ब्स जो सब्जेक्ट नंबर या टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेती हैं वो क्या कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय वॉन्ट्स अ बुक. द बॉयज़ वॉन्ट बुक्स. द बॉयज़ वॉन्टेड बुक्स. I have written three examples. In these examples, the verb want keeps changing its form with the change in number, person, and tense. In other words, it is limited or governed by these things. Hence, it is a finite verb. The boy wants a book. See the verb wants. In the present indefinite tense, there is a rule with the third person singular we use s or es with the main verb. The boy सिंगुलर है तो want के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? s और es. Now I have changed the number. Boy सिंगुलर था, नेक्स्ट सेंटेंस में हमने boys कर दिया प्लूरल. प्लूरल के साथ s और es नहीं आता तो क्या सेंटेंस बना? द बॉयज़ वॉन्ट बुक्स. वॉन्ट्स से क्या चेंज हो गया? वॉन्ट. इन द थर्ड सेंटेंस आई हैव चेंज्ड द टेंस. प्रेजेंट इनडेफिनेट से हमने कौन सा टेंस कर दिया? पास्ट इनडेफिनेट. वॉन्ट वर्ब थी वो किस में चेंज हो गई? वॉन्टेड. तो इन ऑल द थ्री सेंटेंसेस वी हैव सीन देयर इज़ अ चेंज इन द वर्ब according to the change in number, person, and tense. Hence, it is a finite verb. Non-finite verbs, on the other hand, are those verbs which are not limited by number, person, and tense. और you can say जिनमें नंबर, पर्सन और टेंस में चेंज होने के बावजूद भी कोई चेंज नहीं आता, वो कौन सी वर्ब्स कहलाती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, he wants to write a letter. They want to write letters. Mohan wanted to write a letter. In these examples, to write did not change even when the other verb want kept changing according to number, person, and tense. Hence, to write is a non-finite verb. In all the three sentences, there are two verbs, want and write. अब टू राइट, तीनों सेंटेंसेस में टू राइट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, चाहे हम सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं. ही लिखा फर्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट में हमने दे कर दिया. चेंज किस में आया? वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और एस कैरी करती है मेन वर्ब. लेकिन ही को जब हमने प्लूरल दे में चेंज किया तो सिर्फ वॉन्ट वर्ब में चेंज आया, टू राइट में कोई भी चेंज नहीं आया. इन द थर्ड सेंटेंस जब हमने टेंस में चेंज किया और प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर दिया, वांट से वांटेड, अगेन वांट वर्ब में चेंज आया, टू राइट में कोई भी बदलाव नहीं आया. सो टू राइट इज़ ए नॉन फाइनाइट वर्ब. Forms of non-finite verbs. There are three main types of the non-finite verbs: the infinitive, the gerund, the participles. In this video, we will discuss the infinitive. The infinitive can further be divided into two categories: bare infinitive, to infinitive. Bare infinitive. It is also called the plain infinitive or infinitive without to. The bare infinitive
is used with the following expressions. बेयर का मतलब ही क्या होता है, विदाउट, जिसमें हम वर्ब के साथ टू नहीं लगाएंगे। वर्ब से पहले जिसमें टू नहीं लगाएंगे वो कौन सा इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव। तो कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, अगर वो हमें सेंटेंस में शो होते हैं तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव। नंबर 1, विद ऑक्सिलरीज, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, एट्सेट्रा। मोडाल ऑक्सिलरीज के साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, टू का यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हेल्प द पुअर। In this sentence, should is the modal auxiliary, help is the verb. We will not use to infinitive before the verb help because modal auxiliary should has been used here. You should help the poor. Another example, he can go now. अगर किसी सेंटेंस में हमें मोडाल ऑक्सिलरी मिलती है जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, तो हम मेन वर्ब से पहले टू का यूज़ नहीं करेंगे। रूल नंबर 2, इन केस ऑफ ऑक्सिलरीज नीड एंड डेयर, द बेयर इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड चीफली इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस में नीड एंड डेयर मोडाल ऑक्सिलरीज है तो बेयर इन्फिनेटिव ओनली इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, नीड यू गो होम सो सून, नीड यू गो होम सो सून। इन दिस सेंटेंस वी हैव नॉट यूज्ड टू बिफोर द वर्ब गो। हमने क्या यूज़ किया है, बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। ही डेयर नॉट टच हिज ब्रदर्स बुक्स। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। डेयर नॉट के साथ भी हमने टू इन्फिनेटिव को यूज़ ना करके बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया है। वर्ब क्या है, टच। हमने टू टच नहीं, ओनली टच यूज़ किया है। ही डेयर नॉट टच हिज ब्रदर्स बुक्स। रूल नंबर 3, विद वर्ब्स ऑफ सेंसेशन सच एज सी, फील, हियर, वॉच, नोटिस, एट्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन वो वर्ब्स जो हमारी सेंसेस से जुड़ी हुई है, जैसे देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना, फील करना, इन सभी से जो हमारी 5 सेंसेस से जुड़ी हुई वर्ब्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। अगर हमारे सेंटेंस में ये वर्ब्स ऑफ सेंसेशन दी हुई है देन वी विल यूज़ बेयर इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड। वर्ब क्या है इसमें, टू वर्ब्स हैं, सॉ एंड क्रॉस, लेकिन वर्ब ऑफ सेंसेशन सा दी हुई है तो हम टू क्रॉस नहीं बोलेंगे, क्रॉस द रोड करेंगे, हम बेयर इन्फिनेटिव को यूज़ करेंगे। आई हर्ड समवन ओपन द डोर। हर्ड क्या है, वर्ब ऑफ सेंसेशन, तो हम ओपन को बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, ओपन से पहले टू इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज द वर्ब ऑफ सेंसेशन हैज़ बीन गिवन इन द सेंटेंस। रूल नंबर 4, with verbs bid, have, let, make. You have to learn like this: bid, have, let, make. अगर ये verbs हमारे सेंटेंस में दी हुई हैं तो हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। Let's see an example. He bade me write an essay. Two verbs has been given in the sentence, bade and write. We will use bear infinitive. He bade me write an essay. The teacher made the pupil repeat the lesson. Made verb है तो हम repeat से पहले to का यूज़ नहीं करेंगे. We will use bare infinitive. Here is a point to note down. अगर make, bid, let, have इनका पैसिव फॉर्म आपको दिया हुआ है तो आप टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। पैसिव फॉर्म जो आपने वॉइस में रूल पढ़ा है, एक्टिव को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वो पैसिव फॉर्म में अगर ये वर्ब हैं, फॉर एग्जांपल ही वॉज मेड टू रिपीट द लेसन। इंग्लिश ग्रामर में कभी भी अगर मान लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर है तो सेंटेंस इज इन द पैसिव फॉर्म। इफ़ द सेंटेंस इज इन द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब मेक, bid, let, have, we will use to infinitive. Rule number 5. With the expressions
would rather, sooner, rather than, sooner than, we will use bare infinitive. Let's take an example. I would rather stay at home in this weather. We will use bare infinitive. Stay से पहले हमने to का use नहीं किया. I hope you all are able to understand the topic very well, that is non-finite verbs, infinitive. Keep learning, keep growing till the time we meet next in the next video. Thank you.